Okay, so AB to A1 B dash. So this is known as translation. Now this is figure number A. Now suppose if you consider that uh, this B dash, now A1 is static here. Now this B dash is rotating, and it is rotating from B dash to B1. Now the link AB, which was having the initial position, now it is shifted to A1 B1, the new position. So it is combination of translation and rotation both. Okay. So what it is done, the link first has translation motion, that is from AB to A1 B dash, and then rotation. Okay, then rotation till it occupies the final position A1 B1. This is the first figure. Now if you consider the figure number B, in figure number B, let us consider this link AB. Now in link AB, initially B is having rotation. So from B, the position is shifted to B dash. Okay. So initially there is rotation. So we'll get the position A B dash. A B dash. And then this A B dash is translating to A1 B1. A B dash to A1 B1. So here also a combination of rotation translation. In the A figure, translation to rotation, and in B figure, rotation to translation. So translation to rotation or rotation to translation, it is a combined effect. Now, suppose if you consider by our naked eye, so we can say that it is so fast. So we are not supposed to understood which was the exact motion. Okay. So that's why to understood the motion, we need eye center or instantaneous center motion. So we need a center which will tell us that what was the motion, translation or rotation. So that's why instantaneous center method was come into existence. Now if you see the following figure, this eye is the instantaneous center, and everything, the rotation and translation is going, rotation transit is going through this particular figure. Okay. Now as you can see here, link AB. Now here if you see link AB, the previous slide, if you see the same thing, we are taking it, but it is a combined effect. So link AB, it is translating and rotating. So now you are getting the position from AB to A1B. Okay. So B is having pure rotation, and A is also having the rotation. Okay. So pure rotation instead of translation. So B is having rotation. So we get B and A to A1 instead of translation. So we are taking perpendicular bisector BB1 and AA1. Now from BB1 we'll take perpendicular bisector, that N. So it is going towards this center I. And similarly AA1 will take perpendicular bisector M. It is also intersecting to I. Okay. So perpendicular bisector of BB1, that is N, and here perpendicular bisector of AA1, that is M. So we'll get a combined eye center as I. Now both perpendicular bisector meets at I, and that I is known as instantaneous center of rotation. मतलब सारी activity जो हो रही है, rotation, translation, it is going above this instantaneous center. ये दिया है I. So now A1 B1 will move forward. Now this A1 B1 will move forward. So I will also change. अब ये रुकेगा नहीं, ये A B है, ये A1 B1 A1 B होगा, फिर A2 B होगा, A3 B होगा, ऐसे चलते रहेगा सामने. तो अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये I भी आगे बढ़ेगा. ओके. तो ये I कैसे आगे बढ़ेगा, देखो कि मान लो ये पोजीशन है I. अब A1 B आगे बढ़ेगा तो I सेंटर आगे बढ़ेगा.
इस तरह से आपको अलग अलग आई सेंटर्स मिलेंगे, अलग अलग आई सेंटर्स मिलेंगे। और अब इस सभी आई सेंटर को जब आप कंबाइन करते हो तो वो जो पाथ मिलता है आपको C1 C2 C3 आई सेंटर का, उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रोड। सेंट्रोड मतलब लोकस, इसको लोकस बोलेंगे, आपने पढ़ा होगा लोकस फर्स्ट ईयर में। सो लोकस, सो ये पूरे आई सेंटर का लोकस, इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रोड। ओके, सो सेंट्रोड मीन्स लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब हमने क्या किया, ये जो सेंट्रोड है, आई आई सेंटर है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन पास की, परपेंडिकुलर एग्जैक्टली स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन पास की हमने आई से, ओके, सेंट्रोड से, और इट इज परपेंडिकुलर टू AA1 एंड BB1। सो इस ये जो लाइन आई है इसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ये जो लाइन, जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, जो परपेंडिकुलरली गई है एकदम स्ट्रेट, जैसे कि अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो आप एकदम स्ट्रेट देख रहे हो, तो वैसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस। ओके, नाउ अभी ये जो एक्सिस है ना, हर एक से पास होंगी, आई से पास हुआ, देन C1, देन C2, देन C3, सभी से पास होगी। ओके, सो उसको बोलेंगे, अब इसको अगर आपने एक्सिस लोकस बनाया है इसका, इंस्टेंटेनियस एक्सिस का, तो उसको बोलेंगे एक्सोड। ओके, लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस, दैट इज नोन एज एक्सोड। ओके, तो इस तरह से आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर। मींस ट्रांसलेशन हो गया या रोटेशन हो गया, कोई भी लिंक है वो आगे बढ़ रही है ना। कोई भी मशीन होती है जिसमें रोटेशन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, मतलब व्हील घूमते और गाड़ी भी आगे बढ़ती है। सो वो चलते रहेगा, तो उसका आई सेंटर जो है अबाउट एक्सिस वो पूरा चेंज होते रहेगा, तो वो जो लोकस है सभी आई सेंटर का, उसको बोलेंगे सेंट्रोड। और उस सेंट्रोड से जब आप कोई लाइन पास करते हो, है ना, परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस। और उस सभी इंस्टेंटेनियस एक्सिस का जो लोकस रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोड। ओके, now there are various instantaneous center locations, so we'll see one by one. Suppose ये फिगर है, इसमें ये लिंक है फिक्स्ड, लिंक नंबर 1 इज फिक्स्ड एंड दिस लिंक नंबर 2। अब इसका अगर आपको आई सेंटर निकालना है तो जहां वो इंटरसेक्ट होता है, मतलब इंटरसेक्ट कहाँ होगा, 1 और 2 इस पोजीशन पे, इसको बोलेंगे I12। तो ये लिंक जो होती है, ये जो आई सेंटर है, इसको बोलेंगे फिक्स्ड टाइप आई सेंटर। ठीक है, फिक्स्ड, क्योंकि लिंक 1 फिक्स्ड है और ये दूसरे लिंक है 2, दोनों जहां पे मीट हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज फिक्स्ड टाइप इंस्टेंटेनियस सेंटर। आपको न्यूमेरिकल जब आएगा तो आपको वहां पे कितने आई सेंटर से वो लोकेट करने पड़ते। कुछ आई सेंटर हम लोग डायरेक्टली विजुअली भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का लिंक रहेगा, तो आप डायरेक्टली वहां पे लिख देने का, लिंक का नाम 1 और 2 रहा तो I12, दिस इज I12। दूसरा अगर फिक्स लिंक है और वहां पे एक रोटेशन वाला रोटेशन है और उसका रोटेशन इस तरह से है, तो ये लिंक 1 हो गया, ये लिंक 2 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दो पॉइंट बनाए जिसकी वेलोसिटी है A और दूसरी की है B, दो पॉइंट है एंड दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। A यहाँ मूव हो रहा है और B इस तरह से मूव हो रहा है। तो हर एक पॉइंट का आपको परपेंडिकुलर निकालना है, जैसे A का परपेंडिकुलर हो गया और B का परपेंडिकुलर, तो ये कहीं तो भी जाके यहाँ मीट हो रहा है, तो जहां मीट हो रहा है उस पोजीशन को बोलेंगे I12। ठीक है, तो जो भी पॉइंट है, these points are moving in their velocity, now you have to take perpendicular to that particular point, and where these 2 points meet together, that is known as instantaneous center। तो इस तरह का रहेगा, तो आपको उसको परपेंडिकुलरली जहां पे भी वो जाएगा मीट करेगा, आपको ड्राइंग शीट मिलता है ड्रॉ करने के लिए। सो दिस यू विल गेट। देन तीसरा, इसमें फिक्स लिंक है C, और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, और वहाँ पे भी एक पॉइंट है A और वो भी मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में, और दूसरा है B, वो भी मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में। तो ये एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन है।
तो उनको अगर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं ए और बी का, तो वो इनफाइनाइट जाएगा। तो वो जो रहेगा आई सेंटर मिलेगा I12, वो रहेगा इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, तो जब भी स्लाइडर दिया रहता है उसका हमेशा जो भी क्या बोलते हैं उसको, आई सेंटर रहेगा, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स इंफिनिटी। ओके, सो दैट यू रिमेंबर। देन इस तरह का एक लिंक है जिसमें एक बॉक्स है, एक लिंक, so this is link number 1 and here also 2 points are moving, A इस डायरेक्शन में है और B इस डायरेक्शन में है। अब इसका अगर आप परपेंडिकुलर निकालते हो तो इट इज मीटिंग एट सम पॉइंट, तो दिस आई सेंटर इज नोन एज I12। तो दीज आर द लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। ओके, तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स में रहेगा तो आपको ये वाली मेथड फॉलो करना पड़ेगा, फिक्स टाइप आई सेंटर। दूसरा ये है वन फर्स्ट लिंक सेकंड लिंक, और इसमें भी 2 पॉइंट्स है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और दोनों की डायरेक्शन देखो अलग अलग है वेलोसिटी की। तो इसका अगर आप परपेंडिकुलर निकालते तो आपको यहाँ पे मीट होगा, दिस इज I12। ओके, तो अब इसके बेस पे एक थ्योरम है, ये हरदम आता है 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए। इस थ्योरम का नाम है एरन होल्ड कैनेडिस थ्योरम। एरन होल्ड कैनेडिस थ्योरम, इसका दूसरा नाम भी है 3 सेंटर लाइन, इसका नाम है 3 सेंटर लाइन। अब ये क्या होता है कि एक यहाँ पे एक्चुअली 3 पॉइंट्स है, मैंने उसको डायरेक्टली ट्रायंगल बना दिया, बट देयर आर 3 पॉइंट्स, है ना। एक पॉइंट जो दिख रहा है ये पहला वाला, इसका नाम ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट है, इसका नाम है ए, इसका बी और सी। तो 3 लिंक्स है, ए बी और सी, 3 लिंक्स हो गए। ए और बी जहाँ पे ज्वाइन होता है वो आई सेंटर IAB हो गया। ए और सी जहाँ ज्वाइन होता है वो आई सेंटर IAC हो गया, और बी और सी जहाँ ज्वाइन होता है वो आई सेंटर IBC हो गया। अब मुझे अगर IBC का वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये जो पॉइंट रहेगा इसका मुझे परपेंडिकुलर, ये लाइन का परपेंडिकुलर, तो ये रहेगा BC वेलोसिटी, और ये लाइन का परपेंडिकुलर है VBC। मतलब एक ही पॉइंट की 2 वेलोसिटी है, एक ही पॉइंट की 2 वेलोसिटी है। तो अब अगर हम इसको डिसेक्ट करेंगे, मतलब ये सारे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में लेके जाएंगे, है ना, तो ये हो गया पहला, ये दूसरा और इधर तीसरा। तो एक्चुअली इसको अगर सीधा लेके जाते हैं, ओके, और जो तीसरा पॉइंट है, और जो तीसरा पॉइंट है x, मतलब ये कि 3 सेंटर इन 1 लाइन, 3 सेंटर इन 1 लाइन, एंड इफ दे आर मूविंग रिलेटिव टू वन अनदर, वो अगर एक दूसरे के रिलेशन में मूव हो रहे रिलेटिव टू वन अनदर, तो उनके 3 आई सेंटर होंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया IAB, IAC और IBC। ठीक है, 3 आई सेंटर होंगे, और वो तीनों के तीनों कहाँ लाए होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे। ओके, सो उसको समझने के लिए हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। ओके, सो बट इफ यू टेक एनी पॉइंट x अबव लाइन, अब मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट लिया x उस लाइन के ऊपर में, और अगर आप उसको कनेक्ट करते हो तो आपको ट्रायंगल मिलेगा, ये पॉइंट कनेक्ट कर दोगे तो ये ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, you will get a triangle. So if you need this point, then you need the velocity VBC perpendicular to BC, ये वाला पॉइंट है ना, इसका अगर परपेंडिकुलर VBC हो गया, और दूसरा ये वाला पॉइंट रहेगा, उसी का मतलब B की वेलोसिटी VBC है, ये भी इसकी वेलोसिटी VBC है। मतलब क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट की 2 वेलोसिटी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यू गेट डिफरेंट वेलोसिटी फॉर IBC, विच इज इम्पॉसिबल। सो ये तो गलत है कि एक ही पॉइंट है वो 2 अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वो तो कहीं एक जगह पे मूव होना चाहिए। सो दैट्स वाई ये 3 सेंटर एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव लाई करते हैं, अलग अलग नहीं लाई करते, ऐसा एरन होल्ड ने बताया था। इसीलिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए, कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू n-1/2। तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ लिंक्स, हमने लिंक्स पढ़ा था, नंबर ऑफ लिंक्स पढ़ा था। तो जितने लिंक्स है आपको पहले, जैसे यहाँ पे 3 लिंक्स है, तो यहाँ पे हो गया 3, आप यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू 3 इंटू 3-1/2, तो वो आंसर आएगा 2 इंटू 3 6/2 मतलब 3। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि सभी 3 सेंटर जो होते हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, और थर्ड सेंटर जो होता है
वो डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन या उसके मैग्नीट्यूड से। जहां पे उसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड रहेगा वहां पे वो तीसरा सेंटर लाई करेगा। सो दिस इज एरन होल्ट कैनेडीज थ्योरम। ओके, सो इसके बेस पे हमको आगे न्यूमेरिकल्स देखना है। सो देयर इज फर्स्ट न्यूमेरिकल, और इसमें हमको इसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या 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 होते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे देखेंगे तो तीन तरह के इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है परमानेंट, तीसरा होता है नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक 4 बार चेन लेते हैं, वन फर्स्ट लिंक ए बी, देन ये दूसरा लिंक हो गया, ये थर्ड लिंक हो गया, और ये फोर्थ लिंक हो गया। तो दिस इज अ 4 बार चेन। ओके, नाउ वी हैव टू लोकेट द इंस्टेंटेनियस सेंटर। ऐसा दिया रहेगा 4 बार चेन का एग्जांपल बहुत सिंपल, इतना सिंपल तो आएगा नहीं एग्जाम में, बट वी हैव टू स्टार्ट न्यूमेरिकल विद अ सिंपल वन। सो अगर आपको लोकेट करना है कि इसमें फिक्स्ड आई सेंटर कौन से, तो मैंने अभी बताया था आपको फिक्स्ड आई सेंटर कि ये और ये ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे, तो ये पहला आई सेंटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ज्वाइन होगा तो I12, यहाँ पे ज्वाइन होगा तो I14। तो I12 और I14 इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड आई सेंटर। ये ऐसे आई सेंटर है वो देखने से हमको समझ में आ जाती है कि दीज आर द आई सेंटर, सो दीज आर फिक्स्ड आई सेंटर। ओके, दूसरा यहाँ पे है थर्ड वाला, और एक इसका इसका नाम है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 इसका कॉम्बिनेशन हो गया I23, और यहाँ पे जो है I34। तो हमको 4 आई सेंटर्स मिल गए जो हम लोग देख के ही समझ गए कि यहाँ पे वो आई सेंटर्स है। सो I14 और I12 जो है वो है फिक्स्ड आई सेंटर, और I23 और I34 है वो परमानेंट आई सेंटर। मतलब ये जैसे मूव होगा वैसे मूव, लेकिन वो हिलेंगे नहीं, है ना। सो these are I14 and I12 is fixed eye center, and I23 and I34 are permanent eye centers। अब हमको ऐसे आई सेंटर्स निकालने हैं जो फिक्स्ड भी नहीं है और परमानेंट भी नहीं है, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इधर भी ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो कहीं तो भी जाके ये टच हो जाएगा, इंटरसेक्ट होगा। तो जहां पे इंटरसेक्ट होगा उसका नाम एक सर्टन आएगा। सिमिलरली इधर में भी आपको आई सेंटर निकालना है, तो ये लाइन को इंटरसेक्ट जो मतलब एक्सटेंड करो, देन ये लाइन को इंटरसेक्ट एक्सटेंड करो, तो इट विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। सो ये हो गया आपका I24 मतलब I23 और I34 का कॉम्बिनेशन। इसमें जो 3 को हटा दो, क्या बचेगा 24। इधर में I14 एंड I34 यहाँ पे 4 को हटा दो, दिस इज कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा I13। तो ये जो 2 पॉइंट है ये आपको कंस्ट्रक्शन से बनाने के, मतलब जब भी न्यूमेरिकल आएगा ये हर एक का लेंथ दिया रहेगा, आपको एक स्केल में इस लेंथ से ये मतलब डायग्राम आपको आपके ड्राइंग शीट पे बनानी पड़ेंगी, और ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने पड़ेंगे। जब आप ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करोगे तो आपको ये आई सेंटर्स मिलेंगे, फिर आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितना दूर है, और उसका वेलोसिटी निकालना है आपको, है ना। फॉर्मूला क्या है, इसमें कितने आई सेंटर मिले हमको, 6 क्यों मिले, क्योंकि लिंक्स कितनी है 4। तो फॉर्मूला था केनेडी थ्योरम का, फॉर्मूला क्या बोलता है, कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू n-1/2। तो लिंक तो 4 है, तो n की जगह पे 4 पुटअप करो, 4 इंटू 4-1, so 4-1 is 3, 4 3s are 12, 12/2 is 6। so how many eye centers are there, 6 eye centers are there। उसमें से 6 में से 4 तो हमने खुद ही लोकेट कर दिए, कौन सा वाला, I14 I12 ये हो गए फिक्स्ड, देन I23 I34 ये हो गए परमानेंट। अब बचे 2, वो निकालने के लिए एक्चुअली एक सर्कल मेथड होती है जिससे हम लोग ये लोकेट कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है तो हमने इजीली, लेकिन जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आता है, ज्यादा लिंक्स होती है, तो आपको ये सर्कल मेथड काम में आती है इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करने के लिए। तो कैसे ड्रॉ करना है, जितने लिंक्स है उतने आपको पॉइंट्स मार्क करना है सेंटर पे और सर्कल पे, और आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। यू हैव टू जॉइन ऑल दोस पॉइंट, जो परमानेंट मतलब जो आपने जो लिंक्स जितने हैं वो डार्क लाइन से आपको ज्वाइन करना है। सो 1 2 3 4। ओके, अब क्या करना है कि इस स्क्वायर को इस तरह से डिवाइड करो, मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ करो कि 2 हिस्सों में बढ़ जाए वो। हमने क्या किया, 1 को 3 से ज्वाइन कर लिया, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए, 1 3 4 एंड 1 2 3, ये दोनों इक्वल हो गए।
तो अगर आपको अब आपको निकालना क्या है, 13 I13, देखो ये I13 हमको निकालना था। तो हमारे पास क्या कौन से दो लाइंस हो गए, लिंक्स हो गए, ये वाला लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4, ये लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4। तो अब ये लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4 को अगर आप एक्सटेंड करोगे, यहां से आपको पता चलेगा लिंक नंबर 3 मतलब 3 4 और 1 4। ओके, सो 3 4 और 1 4 मतलब ये वाला, ये अगर जब आप एक्सटेंड करते हो तो आपको कौन सा पॉइंट मिलता है, ये वाला, कौन सा 1 3। तो इसको आप जब एक्सटेंड ऊपर लेके जाओगे, लेकिन जब तक ये दूसरा लाइन आप लेके नहीं आओगे इधर से, तब तक आपको पॉइंट मिलेगा नहीं। तो पॉइंट कौन सा मिलने वाला है आपको, 1 3, है ना। तो ये लोकेट हो गया। दूसरा क्या करना है, इस ट्रायंगल इस अब ये अगर हो गया तो दूसरा ये जो आपका मतलब लिंक नंबर 5 मिल गया। अभी इसको ये 2 और 4 को ज्वाइन करो तो आपको ये ट्रायंगल दो हिस्सों में मिलेंगे, एक तो मिलेगा 2 3 4 और एक मिलेगा 1 2 4। दो ट्रायंगल मिल गए। अब आपको लिंक कौन सा निकालना है, 2 4, आपको लिंक निकालना है 2 4। तो हमको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा 2 4 के लिए, 1 2 ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो 1 2 इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा 1 2 को, और दूसरा 3 4 को। तो इसको जब आप करोगे तो आपको लिंक नंबर 6 मिलेगा, ये लिंक नंबर 6। तो ये आप ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हो। और दूसरा इस तरह से जब भी आपको ड्रॉ करना होता है, इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करो। टेबल में आपको जैसे जितने लिंक्स है उतने लिख दो। जैसे 4 लिंक है तो मैंने लिखा 1 2 3 4। तो जो भी लिंक्स आपको दिखता है कि कौन से लिंक्स मिलने वाले हैं, 1 2, देन दूसरा 2 3, है ना, ये 1 2 2 3 3 4, हाँ 1 2 2 3 3 4, ये हो गया प्राइमरी लिंक्स। अभी ये 1 3 जो है वो हमको मिला है, 1 3 वो लिखा हमने। 3 4 जो है 3 4 ये वाला भी ये ऑलरेडी है, तो ये 3 4, और हमको कौन सा मिला 1 4। तो इस तरह से आपको ये टेबल में जो भी लिंक्स मिलती है वो आपको ड्रॉ करना है। 1 2 2 3 3 4, ये 1 2, ये 2 3, ये 3 4, इधर कुछ भी नहीं, अगर 5 होता तो 4 5 आता। अब ये 1 2 3 में से क्या आएगा, 1 2 और 2 3, है ना। और तो इसमें आएगा ये 1 3, देन इधर आएगा 3 4, और आखिरी का 1 4। तो इस तरह से आपको बनाते जाना है। और जो भी जैसे कि मान लो आपको पहला लिंक मिल गया, मान लो हमको पहला लिंक मिल गया कौन सा वाला 1 2 मिल गया लिंक, तो इसको ऐसे गोल करते जाना इस तरह से, ये हमारा हो गया, बन गया। फिर दूसरा लिंक कौन सा मिल गया हमको, 2 3 मिल गया, मिल गया, तो ये 2 3 ज्वाइन। फिर कौन सा मिला हमको, 3 4 मिल गया। तो हमको ये पता चलता है कि कितने लिंक्स अभी निकालने बाकी हैं, है ना। 1 3 निकालना बाकी था, देन 3 4 हम डायरेक्टली देख के बना सके। तो ये 4 तो हमने बाय विजुअली हमने लोकेट कर दिए। अब हमको लोकेट करना था 1 3 और 1 4। 1 3 और 1 4 हमने ये सर्कल मेथड के थ्रू बनाया। हमने क्या किया, चारों पॉइंट को लोकेट कर दिया। चारों पॉइंट लोकेट करने के बाद ये लाइन बनाई हमने, है ना। और ये लाइन से हमको दो ट्रायंगल मिल गए, एक मिला ट्रायंगल 1 3 4 और एक ट्रायंगल मिला 1 2 3। तो जब भी आपको 1 3 ये पॉइंट चाहिए होगा I13, तो आपको 1 2 कौन सा ये जो है 3 4 और 1 4, ठीक है, 3 4 और 1 4, और इधर 1 2 और 2 3, 3 4 और 1 4 और 1 2 और 2 3, ये दोनों को लेके जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा 1 3। तो जैसे 1 3 मिलेगा आपको यहाँ आके इसको सर्कल कर देना है, ओके। और सिमिलरली दूसरा पॉइंट आपको निकालना था ये 2 4 है यहाँ पे, मैंने 2 4 चाहिए, 2 4 हमको पॉइंट निकालना है। 2 4, 2 4 कैसे होगा, 2 4 के लिए हमको ये 2 4 के लिए यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो हमको ट्रायंगल मिलेगा 2 3 4 और 1 2 4। अब क्या करना पड़ेगा, 2 3 और 3 4। 2 3 कहाँ है, 2 3 ये वाला है, 2 3 और 3 4 ये, और दूसरा 1 2 और 1 4, मतलब ये 1 2 और 1 4, इनको एक्सटेंड करो। जैसे आप एक्सटेंड करोगे कहीं ना कहीं टच होगा, कहाँ टच हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, तो ये आपको मिल गया 2 4। तो दिस इज योर मेथड टू ड्रॉ इंस्टेंटेनियस सेंटर। कुछ डाउट है तो पूछो, एनी डाउट, क्योंकि ये इसी मेथड से आपको चलना पड़ेगा और ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये तो एग्जाम्पल था, क्योंकि इसमें मैंने कोई लेंथ थी नहीं करके मैंने ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला, बट इसके बाद का एग्जांपल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड आई होप यू ऑल आर रेडी विथ योर स्केच बुक एंड पेंसिल, रबर, एवरीथिंग, ओके। अगर डाउट नहीं है तो वी विल मूव फॉरवर्ड, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी। आगे जाने सर 1 3 और 2 4 वो समझा नहीं मैं। 1 3 और 2 4 समझा नहीं तुमको, बाकी समझे क्या, ये 4 समझेगा,
1 2 1 4 1 2 3 3 4, इतना समझा? और हाँ बाकी हाँ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, मैं अब तुमको ड्रॉ करके बताता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे है ना एक सर्कल ड्रॉ किया और हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए। इतना छोटा पॉइंटर है, समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको लोकेट करने पड़ेंगे सर्कल पे। ठीक है, कोई भी ऑर्डर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। ठीक है, इतना समझा? 4 पॉइंट हमने मार्क, 4 क्यों मार्क, क्योंकि 4 लिंक्स है ना, इसलिए 4। इसको ज्वाइन कर लो, इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से। ओके, तो हमारे पास लिंक्स क्या 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 हो गया, I12 है ना, I12, I23, देन I34 और I14, बराबर। तो ऐसे हमारे पास 4 ऐसे हमारे पास क्या है, 4 लिंक्स है, बराबर। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि मुझे I13, हाँ यहाँ पे आ रहा होगा ना I13, ये निकालना है, और दूसरा कौन सा निकालना था, I24, ये निकालना है हमको। ये एक्चुअली ये 14 है, हाँ? हमको कौन सा निकालना है, I13 और I24। ये कैसे लिया हमने, देखो यह 1 2 3 4, ऐसे जितने लिंक्स है उतने एक टेबल बनाने का, लिख देने का। ये 1 और 2 मतलब 1 2, 2 और 3 मतलब 2 3, 3 और 4 मतलब 3 4। ठीक है, अब यहाँ 1 2 और 3 में 2 कॉमन है, तो ये 1 3, यहाँ पे 1 3 लिखा। अब 2 3 और 3 4 में 3 कॉमन है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा 2 4। ये 2 3 और 3 4 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 4। अब 1 3 और 2 4 जो है, 1 3 और 2 4 जो है, हाँ, और ये वाला आएगा आपका 1 4 रहना चाहिए, ये वाला 1 4 रहेगा, दिस विल बी 1 4। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका लिंक रहेगा 1 4, हाँ यस 2 4, हाँ। तो अभी हमको यहाँ पे विजुअली देखना है, एक कौन सा हो गया, 1 2 लोकेट कर दिया तो उसको गोल कर देना है। देन 1 4 लोकेट हो गया हमारा, यस 1 4 लोकेट हो गया, इसको ऐसे सर्कल कर देना है। देन 2 3 लोकेट हो गया, 2 3 तो सर्कल कर देना है, और 3 4 लोकेट हो गया तो सर्कल कर देना। तो हमको क्या चाहिए अभी, 1 3 और 2 4, ये दो लिंक हमको मिले नहीं है। तो 1 3 मतलब ये, अब मुझे 1 और 3 को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो स्क्वायर बोलो या रेक्टेंगल बोलो, इसके दो पार्ट, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा वो। ओके, तो ये हमारे हो गए लिंक नंबर 5। लिंक नंबर 5 कैसे बनी, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल कौन सा है, पहला जो ट्रायंगल है हमारे पास वो है ट्रायंगल 1 2 3, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल 1 3 4। ठीक है, सो वी आर हैविंग 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1 2 3 एंड ट्रायंगल 1 3 4। अभी हमको निकालना क्या है, 1 3 नाम की लिंक निकालनी है। तो यहाँ पे जब आप देखते हो ट्रायंगल 1 2 3 में कितने लिंक्स, इसमें कॉमन तो 1 3 हो गया, तो हमारे पास लेंथ क्या है, 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3 कहाँ है, 1 2 और 2 3, 1 2 ये और 2 3 ये, मतलब ये लाइन जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड करके लेके जाने का। और दूसरा कौन सा है, 1 3 4, 1 3 4 में 1 3, सॉरी नॉट 1 3, 1 4, और दूसरा कौन सा 3 4, 1 4 एंड 3 4। कहाँ है 1 4 और 3 4, ये है 1 4 और 3 4, इसको आप लेके जाओ तो ये इंटरसेक्ट होगा। जैसे इंटरसेक्ट होगा, देखो ना यहाँ पे इंटरसेक्ट, ये ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ये यहाँ ज्वाइन हो रहा है, तो आपको ये लाइन मिल गई, लिंक नंबर 5 मिल गई। तो उस लिंक का नाम क्या हो गया, 1 3। ठीक है, समझ में आया इतना, 1 3, हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, अभी अभी क्या करना है हमको, ये तो मिल गया। अभी हमको एक लिंक निकालनी है 2 4 बच्ची निकालने के लिए। 2 4 मतलब यहाँ से ज्वाइन करो, 2 4 ज्वाइन करो, यहाँ पे 2 4 ज्वाइन किया।
तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिले। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल 2 3 4, ये ट्रायंगल मिला, और दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है हमको ट्रायंगल ट्रायंगल 1 2 4, ठीक है। तो ट्रायंगल मिले। अब 2 3 4 देखो, 2 3 4 में क्या आ रहा है, 2 3 + 3 4, 2 3 + 3 4, और 1 2 4 में क्या मिल रहा है हमको, 1 2 + 1 4, बराबर। सो अब यहां देखो 2 3 3 4, अब 2 3 मतलब क्या हो गया, ये 2 3 मतलब ये, और 3 4 मतलब ये। तो ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करो, है ना, जो भी है जहां तक है एक्सटेंड, वो बहुत फेंट लाइन ड्रॉ करना है। और दूसरा 1 2 और 1 4, कहाँ है 1 2, पॉइंटर ही नहीं दिख रहा, हाँ 1 2, ये 1 2 और ये 1 4, इसको एक्सटेंड करो। जैसे आप एक्सटेंड करोगे यहाँ कहीं तो भी इंटरसेक्ट होगा, जहां पे भी इंटरसेक्ट होगा उसका नाम देना है I24। नाउ यू अंडरस्टूड। यस सर। हाँ, तो इस तरह से, अरे ये तो बहुत ही छोटा है एग्जांपल, जब वो बड़ा रहेगा ना तो पागल हो जाएंगे, इतने लिंक्स रहेंगे उसमें, इतना मतलब एडजस्टमेंट मेथड है कि पूछो मत, है ना। क्योंकि मैंने बोला ना, थ्योरी ऑफ मशीन, ये सिर्फ सब्जेक्ट का नाम है, थ्योरी है ही नहीं इसमें, पूरा न्यूमेरिकल है, ऐसे ही आते हैं, एंड इट इज एवरीथिंग लॉजिकल। हाँ, तो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा। अब हमको क्या निकालना है, मान लो ये जो लिंक है कौन सी वाली, एडी, ये इस तरह से रोटेट हो रही है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इसका दिया है, इसका 100 आरपीएम से रोटेट हो रही है। तो हमको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालो, और ये जो है ना ओमेगा बी सी, मतलब ये जो लिंक है जो रोटेट कर रही है 100 आरपीएम से, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, ये दिया रहेगा। तो अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बीसी हमको निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बीसी है वो निकालना है आपको, तो उसमें बी इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑन लिंक बीसी, बराबर। So therefore velocity of B on link BC is velocity of link B, velocity of link B on, अरे ये गलत हो गया क्या, B, ये BC इधर चाहिए था शायद, थोड़ा ना ना नंबरिंग गलत हो गई, ये ABCD ऐसे चाहिए था, ठीक है जाने दो अभी, ठीक है। ये मतलब ये एक तो यहाँ चाहिए था, है ना, ये ड्रॉ करने में काफी काफी टाइम लगता है, और ये एनिमेशन देने में, तो ये नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया, ये बी इधर चाहिए था और ये सी इधर चाहिए था, इट्स ओके नाउ। तो बी सी हो गया, है ना। सो उसमें उस लिंक का नाम क्या है हमारे पास, I13। हाँ, I13 कहाँ है, ये वाला I13, ये वाला, ठीक है, I13। तो ओमेगा बी सी इंटू I13, तो I13 जो है, I13B जो है, I13 का है ये, और ये B, ये ना इसका लेंथ आपको गिनना पड़ेगा कितना आ रहा है। ये जब मैं ड्रॉ किया इसका लेंथ मुझे मिला 500 mm, है ना, तो वो मीटर में लेना है मुझे, तो मैंने लिखा 0.5 मीटर, तो वो हो गया I13B। और दूसरा VB, हाँ VB जो है वो निकला है, ये VB यहाँ पे ओमेगा बी सी इंटू I13B। हाँ, तो ओमेगा बी सी इक्वल्स टू VB अपॉन I13B। तो ये जो VB है उसका लेंथ, VB जो है वो कैसे निकाला, VB, एक मिनट, 1 मिनट। हाँ यस, ये जो इसमें ना लेंथ दिया है पूरा, अब ये मैंने कैसे अंदाज से आपको बताया, इसमें उन्होंने लेंथ दिया हर एक चीज का, लेंथ क्या कैसे दिया है, ये जो लिंक ए बी है उसका लेंथ दिया है 300 mm, लिंक बी सी जो दिया है, और जो लिंक सी डी दिया है उसका लेंथ दिया 360,
AD जो दिया है उसका 600 mm, एंगल BAD जो दिया है, ये BAD है 60 डिग्री का है। देन क्रैंक AB इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग, ये जो क्रैंक AB है ये एक्चुअली नाम नंबरिंग गलत हो गया, मुझे सिर्फ आपको समझाना था इंस्टेंटेनियस सेंटर। अभी फिलहाल एक काम करो फिलहाल ये एंगुलर वेलोसिटी रहने दो, है ना, क्योंकि ना ये थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया। अभी सिर्फ आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर समझ में आ गया ना, वेलोसिटी में आपको अगले न्यूमेरिकल में समझा दूंगा, क्योंकि उसके लिए वेलोसिटी निकालने के लिए आपको विथ स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ, टू द स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इसको फिलहाल रहने दो, ये इतना आपको समझ में आया होगा, तो मैं, है ना, आगे आपको जब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें आपको मैं इंस्टेंटेनियस सेंटर के साथ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी हुआ क्या है कि वो नंबरिंग एक तो गलत हो गई है थोड़ा सा, है ना, और मेरा मेन इंटेंशन था आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर समझाना। सो व्हाट विल डू, विल कीप दिस एज इट इज, विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल। है क्या टाइम अपने पास? अरे 11 बज गए, इसको तो बहुत टाइम लगेगा, 1 आवर लगेगा न्यूमेरिकल समझाने के लिए, बहुत बड़ा है, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। अच्छा ठीक है ना, इतना समझा क्या? किसी कुछ डाउट है तो पूछो, सो दैट विल डिस्कस। अभी फिलहाल वेलोसिटी रहने दो, ये वेलोसिटी हम लोग बाद में देंगे। इतना समझा क्या? सभी को समझा? क्योंकि इसके बाद जितने एग्जांपल है सबसे पहले आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर, जैसे इंस्टेंटेनियस सेंटर निकलेगा सही आए तभी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको आपको गिनना पड़ेगा, स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये 400 mm लिया है तो आपको स्केल लेना पड़ेगा, वो स्केल में ड्रॉ करना पड़ेगा, जब आंसर आएगा फिर उस स्केल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये ऑनलाइन मेथड में मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर क्लास में रहता तो शायद पास में आके समझाया रहता इस तरह से ड्रॉ करते। ओके, बाकी तो ये सिंपल है, एंगल वगैरह से ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट एग्जांपल लेना है, यहाँ पे सारी चीजें दी रहेंगी, ये न्यूमेरिकल दिया रहेगा, है ना। इसके पहले का ये जो था ये न्यूमेरिकल था, लेकिन मुझे वो न्यूमेरिकल समझा नहीं था, मुझे आपको आईसी सेंटर कैसे वो समझाना था। तो न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बनाने के। अभी ये जो बनाया मैंने आज, इसको बैठ के कल बैठ के बनाया, इसको काफी टाइम लगा है ना। तो इस तरह से है। सो विल टेक द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास इसमें। और नेक्स्ट क्लास में इंस्टेंटेनियस सेंटर फिर से एक बार आपको आइडिया आ जाएंगे, क्योंकि हर एक क्लास में इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेगा और ये सिमिलर ही रहेगा। थोड़ा सा कुछ पार्ट रहेगा जो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चाहिए होगा तो। और काफी सारा ये हो गया उसमें, मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ 1 मिनट। मतलब क्या होगा सर गूगल क्लासरूम का कोड दीजिए ना सर। अरे मैंने बनाया नहीं गूगल क्लासरूम, मैंने बोला था कि बनाया था, क्या नहीं बनाया था ना? नहीं सर, आपने बोले थे कि पूरा वीडियो आप उसमें डालेंगे करके। हाँ बोला था ना, लेकिन मैंने शायद बनाया नहीं। अरे मुझे क्या लगा कि सर ले लेंगे क्लास अभी, फिर मैं कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं उसमें। अब अगर मुझे ही लेना है तो फिर उसको सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा ना। वीडियोस है, लेकिन ये वीडियो डालता हूँ, ये थोड़ा सा प्रॉपर है, बाकी के इसके पहले के उतना प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, वो तो आ जाएगा। वो तो सर थ्योरी थे। हाँ वो थ्योरी है, अभी ये यहाँ से शुरू होता है। ये वीडियो डाल देता हूँ मैं क्या करता हूँ, वो चैनल में डालता हूँ, जो मेरा फर्स्ट ईयर के चैनल बना है वहाँ पे डाल देता हूँ, आप उसको रेफर कर देना, ठीक है। ये वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चाहिए होगा तो। अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। समझ में आया ना आप लोगों को? कुछ डाउट है तो पूछो मुझे एक बार, मैंने मतलब आई कैन एक्सप्लेन इट, नो प्रॉब्लम। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है और ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको ना समझ में आया ना तो आप कैसा भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा मतलब कोई मेथड नहीं है, इसमें एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स हमको लेने पड़ेंगे। और इसमें कैसा है, वो हर एक चीज पावर पॉइंट में ड्रॉ करना, तो हर एक को एनिमेशन देना, एक एक चीज मिस नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब मुझे अगर एक क्लास का प्रिपरेशन करना है तो काफी टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है, तो आप सब समझ सकते हो। वो ऑनलाइन में इजी, ऑफलाइन में इजी होता है, डायरेक्टली आप बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हो ना यहाँ पे। और मैं अगर राइटिंग पैड पे बताऊँ तो वो इतना किचकट हो जाएगा, वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं राइटिंग पैड नहीं यूज करता। मैं टेक्नोलॉजी में ये पावर पॉइंट यूज करता, मुझे बेटर लगा पावर पॉइंट। इसमें कैसा ना, थोड़ा क्लीन भी दिखता और थोड़ा समझ में भी आता है, इसीलिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। और अभी नेक्स्ट बोले तो बुधवार को रहेगा क्लास, तो बुधवार को छुट्टी आ रही क्या? शायद छुट्टी आ रही।